Hi guys, welcome to IBPS video. In this video, I'm going to increase your score by 10 marks if you're attending for the next few minutes and focus on what I'm trying to say. Fine. So how we're going to increase your score is basically concentrating on your mock taking strategies. See, if you're going for a war, you have a strategy with you. Fine. If a country go for a war. If you're going to buy something in the market, you have a list of things to buy. If you want to do something, you have a list to do things. Then why most of your students don't go into a mock with a fixed mock taking strategy, that how you have to play today. Fine. See, it's a 100 mark paper and time limit is only 60 minutes. So how you play is very important. Fine. So this is a video about how to play on a particular day, on the D-day of your test. Yep. Alright, so I want to sit with your pen and paper ready so that you can take the notes of all the strategies, how you are to perform in the paper. Alright. All the best. Thank you. So point number 1 is a mock taking strategy. How to manage 100 questions in 60 minutes. That's the main problem. In fact, IBPS is the most toughest exam of all because time is less. Especially in round 1 when the time is only 1 hour to 200 questions. So on an average we got 30 seconds per questions. And 90% of the janta is going to the exam just for time pass. Trust me, 90%. Fine. Out of 15 lakh people approximately who sit for the exam, 16 lakh people, 90% is time pass. Only 1.5 lakh people are serious. जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे, बाकी सब लोग are going for time pass. That's a main advantage for you people. ठीक है. If you're sitting है इसका मतलब you are more serious than those people. ठीक है. अगर आपको विश्वास नहीं होता, जब एग्जाम देने जाओगे तब देख लेना. Look at the people around you. Most of the aunties, married females are going for the exam. कुछ काम नहीं है, चलो भैया go for the exam. But unless you study, how can you pass it? How can you solve 100 questions? Fine. So that's your main. So test taking strategy is your number 1 thing. So most of the people will come out of the exam. There will be maths, verbal, and logic. ठीक है, तो 35 questions, 30 questions, 35 questions. That's your typical breakup. Public will start from here. Quant किया, verbal किया, logic आते थे, time up हो गया. Last में logic का question छूट गया. I'm an engineer, I'm a very good in quant, I start with quant, but I spend too much time on quant, so that आगे का लास्ट का पार्ट छूट गया. ठीक है. नहीं सर, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट, मैं तो पीछे से स्टार्ट करती हूँ हमेशा. तो लॉजिक किया, वर्बल किया, क्वांट छूट गया. There's going to be sectional cut off for each of them. Fine, so you can't ignore any of the areas. ठीक है. That's your one fundamental problem here. Alright, so ideal time distribution for these 3 areas is maths के लिए spend 20 minutes, verbal 15 minutes, and logic 25 minutes. That's the typical breakup for each of them. Why we have to spend more time on logic? Because logic की cutoff is always high. Because Indians are good in logic. Maths आए ना, लेकिन logic में सबके marks आते हैं. Fine. So logic की cutoff is always higher than the other exams. So we have to spend more time on LR. चलेगा? So 25 minutes, 15 minutes, 20 minutes. That time you can change for your own study. I'm an engineer. I want to spend more time on maths. You can do that. But maths की cutoff is not that high. चलेगा, तो why to spend too much time on that? So that's your ideal breakup. So कल जो आपका पेपर स्टार्ट होगा, चुपचाप फिक्स अप द टाइम, घड़ी में टाइमर लगा के चालू करो. टेक अ फ्यू मॉक्स ऑन दैट स्ट्रेटजी. मैथ्स 20 क्वेश्चंस, वर्बल 15 क्वेश्चंस, एंड लॉजिक वर्बल 15 minutes, लॉजिक 25 minutes. दैट्स अ टिपिकल टाइम का ब्रेकअप एंड यू हैव टू फॉलो दिस टाइम. ठीक है. तो यू कैन फाइनलाइज योर ओन टाइम. जो भी है यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटजी टुडे. फाइन. इट कैन बी योर विश, इट कैन बी 20-20-20. बट अगर लॉजिक के 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए तो बाद में आके बोलना मत. ठीक है. सो दैट्स गिविंग मोर टाइम टू लॉजिक बिकॉज कट ऑफ इज नॉर्मली मोर हाई देन द अदर एरियाज. फाइन. सो दिस विल इंश्योर दैट यू आर एबल टू सी ऑल द क्वेश्चन. दैट्स अ मेन एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी. ठीक है. ऑलराइट, मूविंग टू द सेकंड पार्ट इज अ कट ऑफ्स. तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिस्पेक्ट द कट ऑफ्स. नाउ दिस इज देयर नो historical data available so I can tell you कि कट ऑफ इतना आएगा. बिकॉज अदर एग्जाम आई कैन प्रिडिक्ट कि कट ऑफ इतना आएगा बिकॉज हर साल की कट ऑफ इज ऑलमोस्ट सेम. बट दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द न्यू एग्जाम. तो कट ऑफ के बारे में ज़्यादा कुछ अवेलेबल डेटा है नहीं. सो आई एम एक्सट्रपलेटिंग द डेटा बेस्ड ऑन SBI PO. जो SBI PO का जो कट ऑफ था, सिमिलर कट ऑफ आई एम रिकमेंडिंग हियर. मैथ्स की कट ऑफ वॉज 5.25. सो लेट्स अज्यूम मैथ्स की कट ऑफ अराउंड 6. तो आपको 35 में से 6 क्वेश्चन करने हैं बस, मिनिमम, राइट, to get the marks. Verbal की cutoff was again 5.75. Let's assume 6 out of 30. And logic की cutoff was 9.75. So let's assume 10.
and overall cutoff is 48. So let's assume 50 is going to be cut off out of 100. Now it's not 6, 6, 10, total is 22, but overall 50. This is a minimum requirement. So 6 के ऊपर आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 के ऊपर आना चाहिए. So obviously you have to be attempting more questions. चलेगा, that's a minimum requirement in each area. So you have to spend that much minimum time on that so that you clear the cutoff. इसलिए मैंने बोला कि मैथ्स में you spend minimum 20 minutes, verbal में you spend again 15 minutes, and logic we spend 25 minutes. चलेगा. So number 2 was cutoff. Number 3 thing which I want to talk about is attempt. How many questions you have to attempt in your round 1? So in your quant, out of 35 question you have to attempt minimum 15. 12 to 15 हो भी जाएगा आराम से. You can solve that many questions within the 20 minutes का time frame. Verbal same thing again, 12 to 15 question you should attempt, and logic attempt should be around 20. Overall attempt have to be 60 to 65. इसका मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन मिनिमम करना ही पड़ेगा, सो दैट यू क्लियर द कट ऑफ. 60 क्वेश्चन करो, 12-10 भी रॉन्ग हो गया, तुम्हारा कट ऑफ पार हो गया. तो उसके ऊपर जाना, जैसा मिनिमम यू हैव टू अटेम्प्ट. इसके नीचे अटेम्प्ट किया तो समझ आओगे तुम्हारा नहीं होने वाला कुछ. चलेगा. एंड दैट्स अ मेन पार्ट यार. दिस इज नॉट ओनली एग्जाम. SBI, we have SBI PO, we have IBPS PO, इसके बाद ICICI भी है, LIC का भी है, RBI का भी है, SSC. There are many exams. So focus on all the exams going forward. ठीक है. So that was the overview for the attempt point of view. Alright, next part is there is going to be negative marking. So negative marking का ध्यान रखना, same +1 and -1/4. चलेगा. तो नेगेटिव मार्किंग है तो यू कांट ओवर अटेम्प्ट. तो उतना अटेम्प्ट करो जितना तुम्हें आता है. चलेगा. फालतू इफ़ यू आर डाउन टू लास्ट 2 ऑप्शन तो चलेगा. ठीक है. इफ़ आई एम डाउट बिटवीन ओनली ए एंड बी में से कौन सा आएगा, देन यू मार्क, नो प्रॉब्लम. बट अदरवाइज अवॉइड इट, अदरवाइज डोंट ओवर अटेम्प्ट. ठीक है. दैट्स गिव द अटेम्प्ट विच इज़ नॉर्मली पॉसिबल. आई कैन सॉल्व बिटवीन 15 क्वेश्चन in 20 minutes. ह्यूमनली यू कैन सॉल्व. ठीक है. Alright, now we'll talk about the section wise. Quant का section. Round 1 is always focus on arithmetic. कुछ मत करो, सिर्फ अर्थमेटिक पे ध्यान दो. अर्थमेटिक मतलब तुम्हारा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, रेशियोज, प्रपोर्शंस, एवरेजेस, मिक्सचर्स, बस. इफ़ यू हैव टाइम दैट्स योर बेयर मिनिमम. जिनका अगर कल एग्जाम है तो यू हैव टू डू दीज 6 टॉपिक्स टू नाइट. इतना ही करो, तुम्हारा करो निकलेगा. एंड DI बस इतना कर लो, एक रात में हो जाएगा आराम से. यू विल पास द कट ऑफ, यू क्लियर द कट ऑफ. इफ़ यू हैव टाइम फॉर द एग्जाम, लाइक वी गॉट 1 मंथ का टाइम है, 2 वीक्स का टाइम. इसके अलावा अगर टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री और अगर ऐड कर दो तो तुम्हारी कट ऑफ पार हो जाएगी, बिंदास कट ऑफ पार होगी. चलिए. IBPS में ऑलरेडी अराउंड 33% पेपर इज ऑलवेज ईजी. द ब्रेकअप इज ऑलवेज 1/3. इन योर क्वांट का सेक्शन 33% ऑफ द पेपर इज ईजी, 33% मीडियम, 33% टफ, एंड कट ऑफ इज लोअर देन 33%. तो अगर तुमने आसान क्वेश्चन ढूंढ भी लिया तो तुम्हारा काम हो गया. सो ऑल यू डू इज इन योर एग्जाम टू सर्च फॉर द ईजी क्वेश्चन, डू इट. चलेगा. ठीक है. सो आई रिकमेंड 2-way अप्रोच. Divide your 20 minutes का टाइम फॉर द क्वांट सेक्शन इनटू 2 पार्ट्स. राउंड 1 भागते हुए जाओ, 8, 10, 12 जितने इजी क्वेश्चन पिक कर लो. ठीक है. स्पेशल फॉर इंजीनियर, डोंट गेट स्टक टू 1 क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो. छोटे छोटे क्वेश्चन प्यार तुम्हें दिखेंगे यार, बड़े प्यारे क्वेश्चन दिखेंगे. ए एंड बी का रेशियो इज 2:3. अगर टोटल इज 540 तो ए कितना आएगा, बी कितना आएगा, ऐसे इजी क्वेश्चन भी दिखेंगे एंड टफ क्वेश्चन भी दिखेंगे. तो पहले आसान तो उठाओ. तो भागते जाओ, रीच टिल द एंड. वाइल कमिंग बैक डू द बाकी क्वेश्चन. उसके बीच में अगर टाइम छूट भी गया तो वो क्वेश्चन छूटेगा जो तुम्हें नहीं आते थे. चलेगा. ऑलराइट, वर्बल एबिलिटी. इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज इंग्लिश. ठीक है. प्रॉब्लम अंग्रेजी आते हैं कि IBPS दे के आएंगे. इसकी वजह से कट ऑफ इज ऑलवेज लो. 6 नंबर 7 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ कभी जानने वाला. आउट ऑफ 50 मार्क का पेपर कट ऑफ हैव नेवर क्रॉस 12.
पब्लिक का 1/4 से ज़्यादा कट ऑफ कभी गया नहीं IBPS में, दैट्स अ मिनिमम रिक्वायर्ड बाय द वे, इट्स नॉट योर ऑब्वियस इट स्कोर मोर देन दैट। वर्बल में सेक्शन में पहला सेट आएगा RC का, ठीक है। SBI PO में यही हुआ था, पहले 10 क्वेश्चन इज RC, जिसने RC को छुआ वो डूबा। टाइम का है तुम्हारे पास, जितना टाइम तुम्हें, तो RC अवॉइड करो। द फर्स्ट थिंग टू अवॉइड इज RC, नो वन इज गोइंग टू टच द RC। जिसने RC को छुआ वो गया, ठीक है। लुक एट टाइम टेकन टू डू vocab बेस्ड क्वेश्चन है, आता आता नहीं आता, इट टेक 10 सेकंड टू आंसर vocab क्वेश्चन। सो vocab, एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब अपन पहले उठाएंगे। सो अगेन इफ आई डिवाइड वर्बल इनटू 2 फेज, फर्स्ट फेज डू ऑल द इजी क्वेश्चन, vocab छोटे छोटे क्वेश्चन, vocab हो गया, fill the blanks हो गया, all these topics will pick up first, and then in the phase 2 I'll pick up paragraph based question, para jumble, para completion। अगर बड़ा कोई क्वेश्चन आया तो, अगर फिर भी टाइम बच गया, जो नहीं होगा नॉर्मली, अगर टाइम बच गया then go to RC। so you have to divide your 15 minutes according to this। I am okay if you spend maximum time on this thing, 6 नंबर निकालने हैं, your target is to do 12 questions और 15 क्वेश्चन, तो आपको इसमें से आ जाएगा, चलेगा। मैक्सिमम यू टू गो टू पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, RC तक बारी नहीं आनी चाहिए, चलेगा। अवॉइड RC, प्लीज डू नॉट टच RC, RC इज ऑलवेज टफ, RC का लेवल इज ऑलवेज हाई। SBI PO में तो वो 1 पेज का RC, बड़ा RC, उसके ऊपर 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, सो अवॉइड इट, ठीक है। सो ये आपके पास ऐसा एग्जाम है जिसमें RC को छुआ तो तुम गए, चलेगा। तो डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन RC। राउंड 2 आएगा तब अपना वी विल टॉक अबाउट RC, बट राउंड 1 बिकॉज इट्स अ 1 आवर का पेपर, वी डोंट हैव टाइम टू टच RC। राउंड 2 में वी हैव टू स्टडी RC बिकॉज राउंड 2 जब बाद में देखेंगे। ऑलराइट, लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिक में अगेन देयर 2 पार्ट्स। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज लॉजिकल पजल्स, अरेंजमेंट, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। दिस लॉजिकल पजल्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट पजल यू विल एवर सी इन लाइफ, मोर टफर देन कैट का पजल्स एंड अदर एग्जाम का पजल, मोर टफर देन कैट। 6 people are sitting on circular table, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। राम के राइट में श्याम है, लेकिन श्याम के भी राइट, श्याम के लेफ्ट में मोहन है, तो श्याम के लेफ्ट में तो राम बैठा हुआ है। अगर राम के राइट में श्याम है तो श्याम के लेफ्ट शुड बी राम, तो मोहन कहाँ से आ गया? सो इज राम इज फेसिंग इनसाइड, तो उसके राइट में श्याम आ गया, बट श्याम इज फेसिंग आउटसाइड, तो उसके इधर आएगा मोहन। दैट्स नॉट एंड ऑफ स्टोरी, दिस इज राम, ये राम की दादी, ये राम के चाचा, ये राम के अंकल जो बैंक में काम करते हैं, यहाँ पे राम की आंटी जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती है। अला बेटा आप सॉल्व करके दिखाओ। एंड देन 9 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 1 सेट, तो एक क्वेश्चन गले में आके अटकेगा, ठीक है, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो करना ही क्यों, छोड़ दो इसको, ठीक है। आज एक बार गूगल पे डालो CET किंग सर्कुलर अरेंजमेंट्स, ठीक है, यू विल गेट 1 हैंड आउट ऑफ दैट, सॉल्व दैट हैंड आउट। वो हैंड आउट करने के बाद आप डिसाइड करो कि ये चीज़ तुम्हें एग्जाम में करना है कि छोड़ना है, चलेगा, फाइन। सो दैट इज 1 सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन विच इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है, अवॉइड करो ना। यू टेल मी, यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और यू वांट टू सॉल्व कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज 2 become 4, तो बेटा 5 कितना बनेगा, पहले ये तो करो, 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा टाइम, फाइन। सो सेम थिंग गोज फॉर द लॉजिक एज वेल। स्टेज 1 out of 25 minute time what we have allocated for the logic section, run through the paper, solve all the easy question first, coding decoding छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। वापसी में आते आते विल डू बड़े बड़े क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट, ठीक है, तुम्हारा ये वर्बल रीजनिंग आ गया, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, assumptions, conclusions, they all take time। लास्ट में आके अगर टाइम बचा तो we look at logical puzzles। analytical puzzle is always your strong area। 4 लोग हैं, राम श्याम अंकल, 4 तो हो जाएगा, 12 लोग का कौन निकालेगा, ठीक है, अवॉइडेबल। टाइम बचा तो देखेंगे, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा वो तो नॉर्मली। सो दीज 2 सेक्शंस इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द कट ऑफ, ठीक है। सो आउट ऑफ 25 मिनट योर टारगेट इज टू टच 20 क्वेश्चन, सो अगेन 1 क्वेश्चन पर मिनट, चलेगा। Alright, which section to start with? Normally it's always said कि start with your best foot forward। जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया, मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ स्टार्ट करो, वर्बल स्ट्रॉन्ग है तो वर्बल स्टार्ट करो, लॉजिक जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया वो स्टार्ट करो। लेकिन लास्ट ईयर IBPS में क्या होता है, लास्ट ईयर IBPS का पेपर वॉज वेरी टफ। पीपल सेड दिस वॉज अप टू द लेवल ऑफ कैट,
ठीक है, उसमें लॉजिक करने जो गया उसके लग गई, इतना टफ था लॉजिक सेक्शन कि यू फेल्ड. सी इट्स ऑलवेज सेड कि योर बेस्ट प्लेयर शुड स्टार्ट द इनिंग. हमने अपने सचिन तेंदुलकर को भेजा, जा बेटा तू खेल गया, लेकिन अगर सचिन पहली बॉल पे आउट हो गया तो वो टीम की लग गई फिर. फाइन. सो नेवर स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग एरिया, स्टार्ट विद योर एवरेज एरिया. उसका बेस्ट एग्जाम्पल इज वर्बल एबिलिटी. वर्बल एबिलिटी में तुम्हें जो भी हो तुम्हारा अटेम्प्ट अच्छा जाएगा. एक्यूरेसी तो बाद में आने के बाद विल कम टू नो, पेपर के रिजल्ट आने के बाद कि तुमने कितने राइट किए रॉन्ग किए, बट योर अटेम्प्ट इज ऑलवेज गुड. सो ऑलवेज स्टार्ट विद वर्बल सो दैट तुम कुछ क्वेश्चन कर पाओ. ठीक है, तो स्टार्ट विद माई आइडिया विल स्टार्ट फ्रॉम वर्बल, देन मूव टू क्वांट या लॉजिक. पूरा पेपर पूरा सेक्शन तो एनीवे आपको सॉल्व नहीं करना, हर क्वेश्चन में 20-20 क्वेश्चन उठाने हैं. दैट्स योर टारगेट. 15 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन, दैट्स योर टारगेट मिनिमम. ठीक है, इसके ऊपर ही करना है. इसके ये नहीं कि सर ने बोला इतना इतने करके आए हम लोग. ठीक है, तो बिकॉज 30 और 20 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो फिर क्या फिर से मिलने वाला. ठीक है, दैट्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट. सो मेक इट मोर देन दिस. सो 20 एंड मे बी 25, सो दैट अराउंड 60-65 का टोटल अटेम्प्ट जाएगा, तब जाके तुम्हारा 50 पार होगा. एंड कट ऑफ इज अराउंड 50. चलेगा यार. इफ़ यू स्टार्ट लुक एट द कॉम्पिटिशन इट्स स्केरी यार. 1.5 लाख लोग, 15 लाख लोग, 20 लाख लोग. ठीक है, SSC में नंबर ऑफ पीपल टेकिंग द एग्जाम इज 30,000. उनमें सीरियस लोग कितने हैं? बहुत कम. ठीक है, सो इफ़ यू लुक एट फ्रॉम दैट पॉइंट विल बी स्केरी. बट इफ़ आई लुक एट अदर वे राउंड कि तुम्हें सिर्फ 50% मार्क्स लेके आने हैं. 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन कॉलेज में कभी भी 50% आया, एक बार तुम्हारा दोबारा आ गया तो तुम्हारी चांदी होगी. ठीक है, ऑल यू टू डू इज यू टू अटेम्प्ट 50% पेपर. यू टू मेक राइट 50% पेपर, सॉरी नॉट अटेम्प्ट. ठीक है, चलेगा. तो आधा पेपर सॉल्व, आधा पेपर तुम्हें ठीक कर दिया, यू आर इन, यू आर गॉड. Alright, so if you follow all these strategies together, will help you increase your score by at least 10 marks. That I can promise you. Fine. So sit with your pen and paper now and finalize your strategy. Alright. Alright. If you have any more questions, please add me to your Facebook account. So facebook.com/Rafgan. That's my number. That's my Facebook link. So please add me on Facebook. Any kind of question you can ask me. Please subscribe to our video so that you can get all the updates regarding all the exams. If you plan to buy our programs, we have launched the Bank PO, IBPS, SBI, and all other program shortcuts and long cuts and basics. So you can call us on this number and see more details on cetking.com. Alright, all the best. Thank you.